The recording is on here, and let me share the screen so all of you they could see what we have to discuss today. Right? If you remember, in last class, probably the previous week, we were discussing about typical advertising campaign or advertising plan. This was the topic we were talking about. You might have remembered all this stuff. I've already shared this kind of stuff with you. So let me admit few of more students. Right. So we were discussing. I'm going to meet all of you. I mean, there is distortion from somebody, please. Right. This is mute all. Right. We were discussing a pricing plan in last class, and I've already shared this stuff with you. So let me reconnect the lecture. I hope everyone is seeing my shared screen. This is typical advertising campaign plan outline. The second name of this topic is advertising plan because our core area is advertising, so we have to study advertising plan. When we teach, marketing, so we teach marketing plan. When we teach business, international business, we teach, business plan. So the course is advertising, so we are discussing advertising plan now. So this is introduction. Introduction is all about your company introduction. It's about your market introduction. It's all about your products and services and your overall portfolio and market offerings analysis and introduction. So the first, this is introduction. Let me admit a few more students here. Right. Then situation analysis, it's about advertising problems and advertising opportunities. Situation analysis is another name of, SWOT analysis, strengths, opportunities, weaknesses, opportunities, and threats. So in advertising, we are more concerned with advertising problems and advertising opportunities. What are the advertising problems with our current advertising campaigns? With our current advertising programs? What are the problems with that? I mean, are presently whatever we are running on air, that is our advertising campaign. Is that okay? I mean, is that rightly positioning the products we are going to sell in the market? A market is clearly understanding our advertising programs. We have really selected the right, media mix for the promotion of our programs. Target audience are rightly selected. So these are basic advertising problems. Our advertising campaigns or advertising ads are clearly to understand. Is that easy to understand? Is that, participant based or the audience friendly? All kind of advertising problems that would be covered here. Then advertising opportunities. Of course, what are other competing brands are doing? What are the circumstances of the industry overall? Is there any advertising opportunity we can use? I mean, is there any media available we are presently now using? For example, we are using electronic media, we are using print media. Are we using the social media? Are we using the outdoor media? Are we using, the mobile marketing? Are we using the telemarketing? Are we using, the different brochures or something like that? So any media which is still to use, we can use that. Or any problems with the advertising campaigns or the ads, we can edit that ad and we can incorporate the few latest changes in the market, latest changes in the product, latest changes in the service, whatever we are selling. So we can address to the audience a better way, and we can make them understand our products and services. So this comes here in situation analysis. Next is the key planning decisions, advertising objectives, target audience, competitive product advantage, product image and personality, product positioning. So this is all very, very important decisions from advertising point of view. Your advertising objectives. What does your company want to achieve? I mean, that's very important. What is the objective of your advertising campaign? What do you want to achieve? Of course, you are spending, billions of dollars, right? It's not easy.
Why are you advising? It means you have certain problems, you have certain objectives in your mind. So whatever your objectives are, I mean, this could be the launch of new product, this could be the gain of bit more market share, this could be reposition some product, you know this could be achieve the popularity for a certain product. So 0.5%, 2% of the market share we want to achieve. We want to widely spread a better word of mouth about the product. So whatever your marketing or advertising objectives are, then target audience, what are your right target audience, right? You are addressing, you are targeting, I mean, the youth, you are targeting, the elder, you're targeting the senior citizens, you are targeting the men, you are targeting the women, you are targeting the kids, you are targeting smokers, you are targeting the youth, you are targeting, the athletes, whoever your target audience is. So you must clearly understand all the parameters and all of their demography and geography before targeting them. So competitive product advantage, why is your product better than the competing one? Why is Samsung phone is better than Huawei? Why is Huawei phone is better than G5? Why is G5 better than Nokia phone? Why is iPhone is better amongst all these? So these are competitive advantages. So every company that knows that my product has this kind of plus and this kind of negative. So you need to position your product campaigns about the pluses and about the advantages of your company, which your competing brand does not have. So this is how you know that this is comparative product advantage, right? Product image and personality. Of course, every product, every company that has certain image and that has certain personality. We have discussed brand personality in detail in one of our previous classes. Product image, Mercedes car has a different image, right? Toyota car has a different image, Honda car has a different image, So whenever you change the brands, whenever you change the companies, whenever you change the products, their impact, their image in your mind is always different. I mean, there is one refrigerator from Dollins, one refrigerator from PAL, one refrigerator from Electrolux, one refrigerator from Mitsubishi, and every refrigerator is looking differently, that has different space, that has different kind of technology, that have different kind of looks, that have different kind of space in it. So that is product image. When you like something, it means its image is going to be positive and better in your brain. And personality, of course, different companies got different personalities. The people living in DHA, they are very happy with the DHA, Defense Housing Authority. The people living in Barrier Town, they're happy with the Barrier Town. So the people living in, outskirts of the cities and the peripheries of the cities, they have different personalities. So when the people have personalities, same is the case with companies, same is the case with products. Products are different. I mean, mobile phone is a different personality. The mobile phone from iPhone is a different. Mobile phone from Samsung is different. Mobile phone from Nokia is different. So all of them are mobile phones, but they have got different personalities because they're coming from different companies, because they're coming from different firms, and they have got different product and image and personalities. Product positioning is the same. It's a desirable place in the brain of the target market, right? Suzuki has different product position in mind. Suzuki is economy cars. I mean, Alto and Mehran traditionally, which is now Alto, that is different. There was a cheap car, that is a small car. There was economy car, stuff like that. That was product position. Now Alto is redesigned. That is modern car, that is compact car, and that looks better. There is a variety of colors. I mean, AC performance is better. That is power windows and power steering. So this is how the product positioning has been changed when Suzuki has shut down its production for Mehran, and it has redesigned, the Alto, which is modern and tiny car. Then creative strategies. How would you creatively design all of your advertising campaigns? Media strategy. How would you mix different media? How would you utilize different communication channels, sales promotion, price relation, public relations, direct marketing, personal selling, sponsorships, merchandising, packaging, point of purchase, point of sale, all as these different media choices or options or tools available to utilize them. Then it's evaluation. If that is going right,
It is okay. If it is not right, then stop it and edit it and relaunch it. Budgets, you need budgets. All these activities are impossible without money, without budgeting. Then implementation. So this was a clear and comprehensive outline of enterprising plan. So what is important here, the technical portion, is budgeting. How would you allocate the budget to different enterprising activities? समझ आ रही है भाई लोगों? जाग रहे हो? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. चलें जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग बजट्स की, कि अब पैसे हर कंपनी के पास बराबर के नहीं होते, हर ब्रांड के पास बराबर के नहीं होते। आप लोग बजट कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, मैक्स इम्पैक्ट के लिए आपने बहुत सारे ब्रांड्स पे, कोई बंदा 1-1 रुपए पे अड़ जाता होगा, कोई बंदा कहता होगा चल ठीक है यार 10,000 ले लो, 15,000 ले लो, या कोई बंदा कहता होगा यार मुझे फ्रंट पे थे तो 50,000 ले लो। सो एवरी कंपनी हैज गॉट डिफरेंट बजट्स। सो अब बजट्स हैं, पैसे हैं, कितने हैं और उसको एलोकेट कैसे करना है एडवर्टाइजिंग के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या है, उसका साइज क्या है, उसका पोर्टफोलियो क्या है। ऑफ कोर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी है तो उसको बहुत सारा पैसा डेली बेसिस पे लगाना है। कोका कोला रोज दिखाई जाती है, पेप्सी रोज दिखाई जाती है, लक्स से रोज कतरीना मुंह धो रही होती है, और 7 अप रोज पिलाई जा रही है, और माउंटेन ड्यू रोज सलमान खान पहाड़ से कूद के पी रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड वी बाय ऑल दीज स्टफ डेली बेसिस। तो इसलिए हमें ये रोजाना दिखाई जाती है, कि ये ना हो कि अगर लक्स हमें 1 महीना ना दिखाया जाए तो मुमकिन है आवाम लक्स को छोड़ जाए, अगर माउंटेन ड्यू हमें 2 महीने ना पिलाई जाए या दिखाई जाए तो मुमकिन है हम माउंटेन ड्यू पीना छोड़ दें। सो अगर अब कॉलगेट ना दिखाई जाए तो मुमकिन है हम कॉलगेट से अपने दांत ब्रश करना बंद कर दें। सो ये एक साइंस है कि हमें क्यों ये रोजाना प्रोडक्ट्स दिखाई जाती हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हम रोजाना यूज करते हैं, क्योंकि हम ये प्रोडक्ट्स रोजाना खरीदते हैं, क्योंकि हम ये प्रोडक्ट्स खत्म हो जाती हैं और बार बार बाय करते हैं, और हमें एडिक्ट किया जाता है कि आपने हमेशा इसी शैम्पू को यूज करना है, इसी साबुन से मुंह धोना है, इसी टूथपेस्ट से ब्रश करना है, और इसी ब्रांड के जूते पहनने हैं और उसी ब्रांड के कपड़े पहनने हैं। सो ये एक चीज है। अब जिस तरह का प्रोडक्ट होगा, जिस तरह की कंपनी होगी, जिस तरह का पोर्टफोलियो होगा, जिस तरह के मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसी तरह से बजट को एलोकेट किया जाएगा। चलिए अब इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ये जो टेक्निकल है इसके अंदर, मैं वो आपको बताता हूँ। एक चीज अगर आपको थोड़ा सा नजर आ रहा हो, लेट मी मेक इट बिट वाइडर, हिस्टोरिकल मेथड। वो कहते हैं कि जी बजट एलोकेट करने का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड, इसका नाम हमें बता रहे हैं कि दैट इज व्हाटएवर यू यूज्ड टू allocate in the past, you are applying the same percentage in present year, right? पिछले साल भाईजान मैंने अपनी सेल का फॉर एग्जांपल 10% लगाया था 2019 में एडवर्टाइजिंग में, तो 2020 में मेरी एक्सपेक्टेड सेल होंगी इतनी और उनका 10% बनेगा इतना, और 2020 में मैं इतना पैसा लगा दूंगा, क्योंकि मैंने 2019 में भी लगाया, और 2019 की जब मैं प्लानिंग कर रहा था तो मैंने 2018 में भी ऑलमोस्ट इतनी ही परसेंटेज ऑफ सेल्स लगाई थी ना। परसेंटेज ऑफ सेल्स वैसे ये एक सेपरेट मेथड भी है, ठीक है, ये एक नीचे आ रहा है ये। अच्छा चले मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। हिस्टोरिकल मेथड ये बताता है भाई कि पिछली बार मैंने पूरे साल में 1.5 लाख रुपया लगाया अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर 2019 में। अब 2020 में मैं क्या करूंगा, मैंने इसमें भी 1.5 लाख लगाना है, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो मैं उस 1.5 लाख में 5% ऐड करके 7% इन्फ्लेशन का ऐड करके तो 1,75,000 रुपया लगा देता हूँ 2020 में। अच्छा अब बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल ये है ना कि यार मैंने 5 लाख लगाया था, अभी मैं 5 लाख लगाऊंगा, इन्फ्लेशन 5% बढ़ा है तो 5% ऐड करके उतने लगा दूंगा, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस एक फ्लो में चल रहा है, उसके कोई सीजनल फ्लक्चुएशंस नहीं है। वो मैं हमेशा इतना पैसा लगाता हूँ ताकि मेरा ब्रांड थोड़ा सा लाइवली रहे, लोग देखते रहे, मेरी कोई एक आध ऐड लोगों को नजर आ जाए, कोई बिलबोर्ड नजर आ जाए, कोई अखबार में एक आध दिन मेरा ऐड नजर आ जाए, कोई टेलीविजन पे केबल पे नीचे पट्टी चल जाए, चलता रहेगा काम, ठीक है। चले दूसरा क्या, ऑब्जेक्टिव। सेकंड टेक्निक इज ऑब्जेक्टिव टास्क मेथड। ऑब्जेक्टिव टास्क मेथड, जरा इसको अंडरस्टैंड करें। ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, टास्क मेरा क्या है, और मैं उसको अचीव कैसे कर सकता हूं, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यार, अगर मुझे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मेरा प्रोडक्ट पहली बार आ रहा है मार्केट में, तो इसका मतलब है यार मेरा टास्क बड़ा है, क्योंकि मुझे अपना प्रोडक्ट फेमिलियर करना है
किसी को पता ही नहीं है कि गाय जो था सोप वो अब घी भी बनाता है फॉर एग्जाम्पल, या गाय वाले जो हैं वो अब कुकिंग ऑयल भी बनाने लग गए। गाय तो पहले सोप था, सारी दुनिया जानती है कि गाय सोप लोग यूज करते थे कपड़े धोने के लिए। अब गाय ने एक हूर ब्रांड भी बना लिया ना, ये जो हूर ब्यूटी सोप है, जो आप नहाने के लिए बाथ सोप जिसको कहते हैं, वो भी गाय का ही है। गाय से मुराद अजहर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। उसके अलावा गाय का घी भी आ गया और गाय का जो है वो ऑयल भी आ गया, और गाय की पता नहीं कल को फैट्स भी आ जाएंगी, कल को कोई उसके अलावा जो है वो उसमें मतलब मैं क्या कहूँ योगर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा और कुछ भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब इन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने पूरा फैसलाबाद जैम पैक कर दिया कि जी गाय लॉन्च हो रहा है। वो उसको क्या नाम है, जूही चावला को इन्होंने कास्ट किया इंडिया से, और वो हर कोई गाय के गुन गाए, हाँ, वो एक गाना बनाया और हर जगह पे लगाया। शायद आपको याद हो या आपने बिल बोर्ड्स देखे भी हो, ये बात थोड़ी सी 5-7 साल पुरानी हो गई जब ये इसकी लॉन्चिंग कर रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव, वट एवर योर ऑब्जेक्टिव इन टास्क इज, तो यू नीड टू प्ले अकॉर्डिंगली। अगर इस ऑब्जेक्टिव को प्रोडक्ट लॉन्च करने पे मुझे 2 करोड़ रुपए लगाने पड़ रहे हैं, तो मुझे 2 करोड़ रुपए लगाने हैं क्योंकि मेरा टास्क बड़ा है, राइट। अगर मैं उससे भी बड़ी कंपनी हूँ और मैंने कोई नेशन वाइड अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और मैंने कश्मीर घी को टक्कर देनी है, मैंने इसके अलावा जो और घी के कौन से वाले, आप लोगों के घरों में कौन कौन सा घी यूज होता है यार बताओ खवातीन? ऑयल सर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल किस कंपनी का ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल पता नहीं, ग्रीन कलर की बॉटल है, बड़ा मुश्किल सा नाम है उसका। हाँ उसका वो होगा, वो कैन ऑलिव होगा जिसमें कनोला ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल मिक्सअप होता है, शायद कैन ऑलिव में भी। अच्छा, इसके अलावा जी और कोई खातून है इस वक्त? मैं देखूं पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन बैठा हूँ। एनी लेडी टुडे अदर देन जोया? कोई नहीं है। मॉर्निंग वालों, आपकी खवातीन किधर है भाई? सर सोई हुई है। अच्छा चले। सर बारिश हो रही है। अच्छा, सरगोदा में कहाँ बारिश सर हो वी रही है? शुड एंजॉय। सरगोदा में बारिश हो रही है? यस सर। आप सरगोदा से? बाहर नहीं था पाया। और आवाम किधर बारिश हो रही है, चलो बताओ। तो नहीं हो रही, फैसलाबाद में तो सर। नहीं हो रही सर। हाँ, फैसलाबाद में जो है ना वो बादल हैं, बारिश नहीं है, और ये रोजाना ऐसे ही हो रहा है। जी सर, नहीं सर कल बहुत गर्मी थी। हाँ, ऐसे ही है। चले तुम वो बजूरी का शरबत पिया करो यार, जिसको गर्मी ज्यादा लगे। सर वो ठंडा होता है? मेरा ख्याल है। ठीक है सर। सर वो मीठा होता है, उसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं। चलें सुन ले जाए, वो ना पिया करें फिर फीका। वैसे कोई आज तक फीका शरबत कोई सुने? कोई भी नहीं, फीका शरबत तो कोई भी नहीं। सर शुगर फ्री पिए। उसमें जो है ना वो अच्छी शुगर फ्री चीजें ना पिया करें, क्योंकि वो जो शुगर फ्री इसको करते हैं उस पे जो चीजें वो एस्पर्टेम और इस तरह की चीजें डालते हैं वो बड़ी घटिया और सस्ती डालते हैं ये लोग ना, वो हमें शुगर फ्री नाम ही है। या तो कोई अच्छी कंपनी का कोई क्या फायदा है? यार मैं हकीम नहीं हूँ भाई। अच्छा चलिए ठीक है सर। ठीक, वो बाद में बैठ के ठीक है। तो चले। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि कश्मीर घी है। कश्मीर शायद थोड़ा सा फेमस ब्रांड है, लोगों के घरों में शायद ज्यादा यूज होता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। सर कश्मीर और डालडा ऑयल भी है। डालडा ऑयल है, या और 2-3 ब्रांड्स हैं जो लोग यूज करते हैं। अब गाय ने बड़ा जोर लगाया, गाय ने बड़ी एक धुआंधार किस्म की लॉन्चिंग की, और वो था भी फैसलाबाद का ब्रांड, राइट। लेकिन गाय मतलब मैंने तो आज तक नहीं खरीदा, ये मैं अपने घर नहीं लेके आया। ये शायद आप में से कभी किसी ने गाय नाशपाती ऑयल या घी खरीदा? नो सर। शायद आप लोग शायद कश्मीर या इस तरह का ऑलरेडी मतलब जाहिर है जो जिस ब्रांड पे लगा हुआ है वो उस ब्रांड को यूज करता रहता है। तो गाय हम लोगों के घरों तक या किचन तक एक्सेस नहीं ले सका। सो ये सवाल ये है कि ऑब्जेक्टिव टास्क मेथड हमें ये कहता है कि भाई अब देखो ना, नेक्स्ट कोला ने लॉन्च की, उसने हुमायूं सईद और वो क्या नाम है दूसरी लड़की का जो उसके साथ उसने लिया,
वो नेक्स्ट कोला के वो ट्रेन से कूद के वो ऐड कर रहे हैं, वो है रेगुलर ड्रिंक लेकिन उसको दिखाया है कि एनर्जी ड्रिंक की तरह से जा रहा है। खैर एनीवे वो टक्कर दे रहा है कोक और पेप्सी को, जो वो मिजान बेवरेजेस बोला ना, नेक्स्ट कोला जो आपने देखा होगा। तो अब वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कोक और पेप्सी को टक्कर मारनी है, राइट। तो फिर ठीक है, थोड़ी सी कास्ट भी बड़ी रखनी पड़ेगी, मॉडल भी ए क्लास लेना पड़ेगा, उसकी शूटिंग भी अच्छी होगी, प्रोडक्ट के अंदर भी थोड़ी सी कुछ दमखम होना चाहिए, और यू नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। तो इस तरीके से चलेगा भाई। तो ये हमें सिंपल ये बताता है कि जो करना चाह रहे हो, जिस तरीके से करना चाह रहे हो, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, very simple. Its name is telling us entire story. Percentage of sales method, कि यार हम माजी में अपनी सेल्स का जितने फीसद एडवर्टाइजिंग पे लगाते हैं, हम इस बार भी उतना ही परसेंट लगाएंगे। वो कहते हैं स्टेप 1 क्या है कि पास्ट एडवर्टाइजिंग डॉलर्स, जितने पैसे हमने एडवर्टाइजिंग पे लगाए, राइट, डिवाइडेड बाय पास्ट सेल्स, जितनी हमारी पिछले साल सेल्स हुई थी, वो जो भी आंसर आएगा उतनी परसेंटेज हम इस बार लगाएंगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल तरीका उसने Yes, कहा। ये ले, पिछले यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने लगाया एक $100, सेल्स मेरी हुई थी फॉर एग्जांपल $1000 की, मेरे पास क्या आंसर आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 10%। $100. इस बार मैंने 10% अपनी सेल्स, अब मुझे पता है कि यार 2020 जो है वो 4-5 महीने रह गए, हाँ 5 महीने रह गए ना, 4.5 महीने रह गए, तो इसमें इतनी सेल्स मैं कर चुका हूँ, अगले 4 महीनों में मैंने इतनी सेल्स करनी है, और ये इसका 10% इतना बनता है, और इतना पैसा मैं एडवर्टाइजिंग पे इन 7 महीनों में लगा चुका हूँ, और अगले 4 महीनों में मैंने इतना पैसा और लगाना है। ये 2020 गुजर जाएगा, 2021 के शुरू में जब आप प्लानिंग बैठ के कर रहे होंगे तो फिर आपको पता होगा कि यार 20 में मेरी ये सेल्स थी और ये परसेंटेज थी, और 21 में मेरी एक्सपेक्टेड सेल्स ये है, और इसका ये होगा, और मैं इस तरीके से लगाना शुरू कर दूंगा। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड, ये है कंपैटिटिव मेथड। कंपैटिटिव का नाम हमें बता रहा है कि ये वो मेथड है जिसका ताल्लुक कोई कंपटीशन से है, कि ब्रांड ए कितना स्पेंड कर रहा है, ब्रांड बी को कितना स्पेंड करना है, ब्रांड सी को कितना स्पेंड करना है। शेयर ऑफ वॉइस, देखिएगा, शेयर ऑफ वॉइस इज इक्वल टू शेयर ऑफ कंज्यूमर माइंड, एंड दैट इज इक्वल टू मार्केट शेयर। अच्छा, एक ऐसी थ्योरी चलती है कि आप लोग जितना शेयर ऑफ वॉइस, यानी मीडिया पे अगर 20 मिनट की एडवर्टीजमेंट्स चलती हैं, और उन 20 मिनट पे आपने कितना टाइम मीडिया पे आपके ब्रांड को दिखाया जाता है, ये नाम हो गया शेयर ऑफ वॉइस। यानी 10 मिनट मोबाइलों के ऐड चलते हैं, उसमें कितनी बार सैमसंग का चलता है, कितने मिनट नोकिया का चलता है, कितना मिनट जो है वो किसी और का चलता है। दिस इज नोन एज शेयर ऑफ वॉइस। अच्छा, शेयर ऑफ कंज्यूमर माइंड, कहते हैं कि जितनी बात आप उस बंदे को सुनाई जाएंगे, उसके दिमाग का उतना पोर्शन आप लेते जाएंगे। मतलब मैंने आपको एक बार सैमसंग का फोन दिखाया, फिर मैंने आपको 2 बार दिखाया, फिर मैंने आपको तीसरी बार दिखाया, फिर मैंने आपको कल 4 बार दिखाया, फिर मैंने आपको परसों 6 बार दिखाया। तो हो क्या रहा है कि आपका दिमाग सैमसंग की तरफ जा रहा है। ये शेयर ऑफ माइंड है ना कंज्यूमर, वो बढ़ना शुरू हो गया सैमसंग की तरफ। ठीक है, अच्छा, जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फिर आप फोन खरीदने जाएंगे, तो दिस इज एक्सपेक्टेड दैट यू वुड बाय सैमसंग फोन, क्योंकि आप पिछले महीनों से देख भी वही रहे थे और आपको समझ भी वही आ रहा था। दे वुड बी इक्वल टू मार्केट शेयर एंड यू वुड फाइनली बाय सैमसंग फोन। तो इसका मतलब मार्केट शेयर भी सैमसंग को बढ़ जाएगा। तो दिस इज नोन एज कंपैरेटिव मेथड। अब कंपैरेटिव मेथड क्या कहता है कि यार अगर पेप्सी एडवर्टाइज कर रहा है रगड़ के, दबा के, तो फिर कोक को भी दबा के एडवर्टाइज करना है, राइट। और तीसरी चीज ये है कि नेक्स्ट कोला को ये देखना है कि यार कोक और पेप्सी तो भाई बहुत एडवर्टाइज कर रहे हैं, अगर मैंने भी गेम के अंदर रहना है तो फिर मुझे भी दबा के एडवर्टाइज करना है। सो व्हाटएवर ब्रांड ए इज डूइंग, यू नीड टू डू दैट। सर, जी हाँ जी सर इधर हम अपने दूसरी कंपनी के लॉयल कस्टमर्स को कैसे लेके आएंगे? लॉयल कस्टमर्स तो आएंगे ही लाइक नहीं, अगर लॉयल कस्टमर तो नहीं है। जो आईफोन है वो पाकिस्तान में अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग, उसको जरूरत ही नहीं है ना, उसको जरूरत इसलिए नहीं है, यहाँ कोई ऑथोराइज डीलरशिप नहीं है। यहाँ सारा फोन कहाँ से आता है, लोग दुबई जाएंगे, उसकी लॉन्चिंग होगी, आवाम दुबई जाएगी, वहां से पॉकेट में छुपा के प्लेन में लेके आएंगे 3-3, 4-4 फोन, इधर आके वो उसको बेचेंगे। ठीक है, अब होता ये है कि आईफोन के अलावा और इस तरह के जो सारे ब्रांड्स हैं,
ये ग्लोबल किस्म के ब्रांड्स हैं, ये हाईली ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं, इनका लोकल होने से ताल्लुक नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारा तो फोन अभी सितंबर में लॉन्च होगा, आईफोन 12, अब उसकी प्री बुकिंग्स जारी हैं, लोग उसको ले रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इस तरह के यूजर्स हैं ना, जो लॉयल यूजर हैं, इन्होंने तो जिंदगी में कभी दूसरे फोन की तरफ देखना नहीं। ठीक है, अब जिसने लैंड क्रूजर एक बार रख ली, वो लैंड क्रूजर से नीचे तो नहीं चढ़ेगा ना भाई। बिल्कुल सर ऐसे ही। ठीक है, उसको तो मुसीबत वो पड़ेगी। सर BMW X7 पे जाएगा फिर। वही है ना कि वो फिर क्या करेगा, वो नीचे नहीं आ सकता। क्यों? अनलेस कि उस बेचारे के हालात में माड़े हो जाएं, उसका बिजनेस ना तबाह हो जाए, या कोई और इकोनॉमी ना बैठ जाए हमारे मुल्क की, या वो उसके बहुत ही बुरे हालात हो जाए, तो फिर वो सोचेगा कि यार अब तो जो है वो चीज़ों को करना है। लॉयल यूजर नहीं होता ये, बेसिकली जो आपने एक बड़ा चंक ऑफ मार्केट होता है ना, जिसमें से आप अपना कस्टमर खींच रहे होते हो, कर रहे होते हो, ये वहाँ ये वहाँ चलती है साइंस। लॉयल यूजर्स आर वेरी फ्यू, वैसे आपस की बात है, लॉयल यूजर इतने ज्यादा होते भी नहीं है, वो कम होते हैं। ठीक है, और उनके पीछे फिर वो आपको खपने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो आपका लॉयल होता है। वो भाई 10 मिनट में हमारा सेशन भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये बात समझ में आई? यस सर। कंपैरेटिव मेथड कि यार अगर होंडा ने गाड़ी नहीं लॉन्च कर ली है और टोयोटा ने भी गाड़ी नहीं लॉन्च कर ली है, उसने अपनी सिटी बेचनी है, उसने अपनी एक्सएलआई बेचनी है, वो ठोक के करेगा, सिटी की एयर प्राइसिंग को दबा के उस पर पैसे लगाएगा। अब क्योंकि मजबूरी है, दोनों 1.3 कार हैं, दोनों एक तरह की हैं, सिटी का और एक्सएलआई का मुकाबला भी चलता आता है, आवाम ये भी खरीदती है, वो भी खरीदती है, तो भाई फिर अब एक कंपटीशन में रहने के लिए उतना पैसा लगाओ जितना वो लगा रहा है। कंपैटिटिव, you know, whatever Honda is spending, Toyota needs to spend similar kind of money. अच्छा, आखिरी उसने बड़ा सिंपल तरीका बता दिया है, क्या? ऑल यू कैन अफोर्ड। ऑल यू कैन अफोर्ड वेरी सिंपल कि भाई जितने तुम्हारी जेब में पैसे हैं, जितनी तुम्हारी प्रोडक्ट डिमांड करती है, जितनी पॉकेट्स तुम्हारी डीप हैं, उतने पैसे तुम उस पर लगा लो। ज्यादा औखे होने की भी जरूरत नहीं है, कम खर्चने की जरूरत भी नहीं है। सो दिस इज योर डिसीजन, दिस इज योर मनी, दिस इज योर बिजनेस, राइट? आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप उनको अचीव करने के लिए कितने पैसे लगा सकते हैं, कितने पैसे आपके पास हैं, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये वेरी सिंपल, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, मैंने कितना पैसा एडवर्टाइजिंग पे लगाना है, सो यू कैन फॉलो दिस लास्ट टेक्निक, व्हाटएवर यू कैन अफोर्ड यू कैन स्पेंड। अब हम ये बात मेरे सुन लें कि ये चैप्टर भी यहाँ फारिग हो गया है, और इट वाज चैप्टर नंबर व्हाट वाज द चैप्टर नंबर 7। ठीक है, हमने कुछ ना करते हुए भी ये घिसी पिटी जूम की क्लासेस पे कोई 6-7 चैप्टर को, मैंने चीजें छोड़ी भी होंगी, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं, तो 7 चैप्टर भाई लोगों हमने कर लिए हैं। तो सर इतना ही करना है? एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, ठीक है। और अभी मेरा ख्याल है कुछ 3 के चैप्टर हमें और करने हैं। नहीं सर, काफी है। हाँ सर मैंने कहा करवाए सर आप। ये दरमियान में कौन बोल रहा है यार? अच्छा चले सर, ये बेदार हो। 31 मुझे लगता है, मेरा जाती ख्याल ये है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस मुझे लगता है अगस्त एंड तक चलेंगी, और जब तक क्लासेस चलेंगी तब तक हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब आखिरी बात ये है कि मैं 22 तारीख तक बिजी हूँ, शदीद बिजी हूँ, और उसके बाद मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं। अगर वो जमशेद ऑनलाइन है तो वो सुन ले, और वो जो मुस्तफ़ा है वो ऑनलाइन है तो वो सुन ले। मेरा नहीं ख्याल के दोनों बंदे हैं, चेक करूं? कर लें सर, चेक कर लें। हसनैन, मोहसिन, कमर, अफजाल, नहीं है हसन, अली रजा, हाँ जी, अवैस, बिलावल, आतिफ, फुरकान, फरहान नहीं है जी, हनान ये वो नहीं है। चलिए, मैं इंशाल्लाह 22 इज ऑन वेडनेसडे, परसों, उससे अगले दिन, उसके बाद इंशाल्लाह मैं लेक्चर रिकॉर्ड, इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, आपकी कोर्स आउटलाइन में आपके साथ शेयर करूंगा, फिर वो यूट्यूब पे जाके आप देखते रहिएगा। अच्छा राइट जी, कोई और मेरे लायक खिदमत है तो बताएं। सर आप बताएं। बढ़ी गई है। हाँ, ये सारा डाटा भी शेयर हो जाएगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल जाएंगे। ये जूम की ये क्लासेस जो रिकॉर्ड हो रही है ये भी मिल जाएंगी, ठीक है? ठीक है सर, शुक्रिया।
चलें जी, अपना अपना ख्याल रखें। ये वैसे भी मीटिंग भी ओवर होने वाली है 2-4-5 मिनट में। हाँ सर ये वाली जो रिकॉर्डिंग है सर ये पोर्टल पे मिलेगी हमें? ये भी बात पोर्टल पे मिलेगी। उसके अंदर मैं कुछ चीजें वैसे बोल के, मेरी शक्ल भी नजर आ रही होगी, उसको भी रिकॉर्ड करूंगा। कोर्स ऑफ लाइन्स भी बना के एक पूरे पैकेज बना के ना सारी क्लासेस के यूट्यूब पे रखते हैं ताकि आवाम घर बैठ के लगी रहे। हाँ? बस ये इंशाल्लाह इसी वीक के एंड से मैं इस पे स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। चलें जी, ठीक है, अपना ख्याल रखें फिर। ठीक है सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।